Hello, students, and welcome in the online session of Class 6 Science, Chapter 10 Motion and Measurement of the Distances. Now, as we all know, that motion means movement, and measurement of distances means every type of distances can be measured. So, let us see the learning goals today. So, we are going to learn about the story of the transport, how far you have traveled, then some measurements and the standard units of measurements. So, let's start first with the story of the transport. Okay, transport means to carry the substances or the things from one place to another place. So, since ancient times, this transport system is present, but the means of transport are different, right? So, means of transport means the things which were used to carry the substances from one place to another. Like today, we have cars, buses, trucks, aeroplanes, okay, boats. These are what? These are the means of transport. These are the vehicles which are used to transport the materials from one place to another. So, the means of transport were not the same as they are present today. In the ancient times, there were different means of transport. Right now, today we have variety of transport means, but in the ancient times, these all means of transports were not present. So let us see what these people used to do at that time. What is the story of the transport? How the things to be transported at that time? So many years ago, people did not have cars, bicycles, trains to move from one place to another place. Then the question arises, how do they move from one place to another? So they used to move on their foot, राइट सो एंशियंट टाइम्स में जब लोगों के पास ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे तो दे यूज टू मूव ऑन देयर फुट, वो पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे एंड दे यूज टू कैरी देयर लगेज ऑन देयर बैक, राइट? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो भी लगेज होता था उसको पीठ पे इस तरीके से बांध के, बैक पे बांध के, देन दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई साधन नहीं था, कोई तरीका नहीं था उनके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लेकिन for water transport, but if they have to travel through water then they use boats, but the boats used at that time were also different from the boats that are used today। ठीक है, तो यहाँ पे in the picture you can see a very simple boat। what they used to do, they just tied some simple logs of wood, कुछ लकड़ियों के pieces को इस तरीके से बांध देते थे and then they made a simple boat which can be used to travel through the water। देन आफ्टर सेवरल ईयर्स द व्हील वॉज इन्वेंटेड। बहुत सालों के बाद क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। ओके, यू कैन सी द व्हील्स हियर, पिक्चर में आप यहाँ पे व्हील्स देख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स। ये पुराने लकड़ी के बने हुए व्हील्स हैं और धीरे धीरे मटेरियल भी चेंज होता गया एंड दिस इज द व्हील विच इज यूज टुडे। सो ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, इसने पूरा जो लोगों का लाइफ था वो चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो व्हील्स थे इनसे बहुत सारे व्हीकल्स बनने लगे। इवन एनिमल्स के पीछे भी कार्ट्स, ठीक है, गाड़ियां बांध दी जाती थी जो कि जिनके नीचे के व्हील्स होते थे और फिर एनिमल्स उन गाड़ियों को पुल करते थे। ठीक है, जैसे कि कैमल कार्ट्स होती हैं, बुलोक कार्ट्स होती हैं, हॉर्स कार्ट्स होती हैं। तो ये जो सारी कार्ट्स हैं, ठीक है, ये जो गाड़ियां हैं, बैल गाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां, इनको एनिमल्स पुल करते हैं और जो पीछे जो कार्ट लगा हुआ होता है उसके नीचे व्हील्स होते हैं और व्हील्स क्या करते हैं, दे रोटेट एंड हेंस दे इजीली द व्हीकल कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड। स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ एंड दिस वाज अ बिग चेंज इन द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टीम इंजन जो था उससे वो जो है ट्रेन्स को कैरी करता था, बड़े बड़े पीछे डब्बे लगे होते थे जिससे कि जो है वो ट्रेन बहुत दूर दूर तक प्लेसेस पे जा सकती थी। तो लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा चेंजिंग इन्वेंशन था जिसने की लाइफ चेंज कर दी, फार ऑफ प्लेसेस पे लोग ट्रैवल कर सकते थे। और ये जो स्टीम इंजन है इसमें स्टीम वाज द पावर थ्रू विच द इंजन वाज वर्किंग। कोल को जलाया जाता था, उससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी और वो स्टीम से उस इंजन को एनर्जी मिलती थी और वो ट्रेन जो है रन होती थी। अब आजकल क्या हो गया है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं। अब हमारे पास वेराइटी ऑफ व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, मेट्रोज हैं, इतना वेराइटी ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल है।
टू व्हील व्हीकल्स में भी आप देखो, टू व्हीलर्स जो होते हैं उनमें भी वेराइटी ऑफ स्कूटीज, बाइक्स जो है अवेलेबल है आज के टाइम में। वेराइटी ऑफ साइकिल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो आज का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है, उसमें इतना ज़्यादा इन्वेंशन, इतना ज़्यादा वेराइटी आ गया है। तो लेकिन एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं था। इन द एंशियंट टाइम पीपल यूज टू वॉक ऑन देयर फुट एंड कैरी देयर लगेज, और सिंपल सिंपल उनके जो है व्हीकल्स होते थे। लेकिन आज जो है ये बहुत ही चेंज हो गया है। सो दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि किस तरीके से एक छोटी छोटी सिंपल चीज़ों से बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो है वो बनी है। देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हाउ फार यू हैव ट्रैवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, हम कितना दूर हमने ट्रैवल किया। एक जो टेबल है या डेस्क है उसका कितना लेंथ है, उसकी कितनी ब्रेथ है, दैट ऑल कैन बी मेजर्ड नाउ डेज। ठीक है, तो सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल, एंड इफ योर टीचर आस्क दैट हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड, सो दैट इज ऑल्सो मेजरेबल, उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एक बिग बिग डेस्क है आपके पास एंड टू स्टूडेंट्स हैव टू शेयर इट सपोज, तो आप इजीली मेजर करके बता सकते हो कि एक स्टूडेंट के पास कितना हिस्सा आएगा और दूसरे स्टूडेंट के पास कितना हिस्सा आएगा। देन वी कैन ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, का डिस्टेंस भी मेजरेबल है। पुणे एंड मुंबई के बीच का भी जो डिस्टेंस है वो मेजरेबल है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। राइट, सो ऑल दीज थिंग्स विच आर प्रेजेंट दे ऑल आर मेजरेबल, दे कैन बी मेजर्ड, लेकिन तरीके जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द मेजरमेंट्स, किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। तो सपोज यू आर टोल्ड कि आप अपने फुट से अपने क्लासरूम का लेंथ और ब्रेथ जो है मेजर करो पैरों से। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। एक्चुअली मेजरमेंट जो होता है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसी अनजान क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं किसी नोन चीज से। ठीक है, किसी जानी हुई चीज से। जैसे आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार को बोला कि 1 kg मुझे राइस चाहिए। ठीक है, तो अब 1 kg वो कैसे नापेगा, ही हैज टू यूज द वेट्स एंड द मेजर। वेट्स, वो जो 1 किलो का बाट, जिसको हिंदी में बाट बोलते हैं, स्टोन जो वेइंग स्टोन होता है वो रखता है दूसरी साइड वेइंग मशीन पे, और एक साइड वो राइस रखेगा जिसको वो मेजर कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है किसी अननोन क्वांटिटी को। ठीक है, अननोन राइस, जिस उसको पता नहीं है कि ये कितना केजी राइस है, तो वो अननोन चीज को एक साइड रखता है और नोन चीज को दूसरी साइड रखता है। जो 1 kg का वेट वेइंग स्टोन है उसको दूसरी साइड रखता है। तो अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, देन ओनली वी कैन डू द मेजरमेंट्स। तभी जो है मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। जैसे अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपको कोई स्केल यूज करनी पड़ेगी। तो स्केल में क्या होता है कि नोन क्वांटिटी है, आपको पता है ये इतना डिस्टेंस 1 मीटर है, इतना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो नोन चीज को यूज करके हम अननोन चीज का पता लगा सकते हैं, दैट इज व्हाट मेजरमेंट। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है जो हमें पता होती है, जैसे 1 kg क्या है, वी नो, वो एक एक वेइंग स्टोन होगा जिसपे 1 kg लिखा होगा, वो नोन उसका वेट है। तो जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिसको हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिट। जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर द यूनिट्स यूज्ड। तो जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि एक बॉक्स है उसका वेट जो है 10 kgs है। तो आप देखो, जब आप मेजरमेंट लिखते हो तो आप दो चीज़ें लिखते हो। वन पार्ट इज द नंबर पार्ट, एक नंबर पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, उसका यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया नंबर, और ये जो पार्ट है दिस इज द यूनिट। तो आप दो चीज़ें मेजरमेंट में इकट्ठा लिखते हो, एक तो उसका वैल्यू जो नंबर होता है, और दूसरा जो होता है वो उसका यूनिट होता है। राइट, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, लीटर्स है। हम जो मिल्क है वो मेजर करते हैं लीटर्स में, कितने लीटर मिल्क हमने लिया, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर्स। तो वो जो लीटर है दैट इज व्हाट, दैट इज द यूनिट। फिर 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो एक नंबर वैल्यू आती है आपके पास और एक उसका यूनिट हम लिखते हैं। सो मेजरमेंट इज व्हाट, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी। और हमेशा जब भी आप मेजरमेंट लिखोगे तो उसके साथ में एक यूनिट होता है जो कि नोन होता है, जाना पहचाना होता है। ठीक है, अब देखो एंशियंट टाइम में बहुत सारे जो हैं मेजरमेंट के तरीके, मेजरमेंट्स के यूनिट्स यूज करते थे। ठीक है, जैसे कि पुराने ज़माने में एक मेजरमेंट का तरीका जो यूनिट यूज़ किया जाता था वो था अंगुल, मतलब कि फिंगर्स से मेजरमेंट करते थे। राइट, 4 फिंगर डिस्टेंस है कि 5 फिंगर है। ठीक, इसको हिंदी में और अंगुल भी बोलते हैं। ठीक है, 4 अंगुल डिस्टेंस है, 3 अंगुल डिस्टेंस है, 1 अंगुल लंबा है, छोटा है। तो ये जो अंगुल है, फिंगर है, ये यूनिट है मेजरमेंट का। इन्होंने जैसे बोला 4 अंगुल, तो 4 क्या है, वो नंबर वैल्यू है, और अंगुल क्या है, यूनिट है। तो पहले के ज़माने में मीटर सेंटीमीटर्स नहीं पता होते थे, तो वो कैसे यूज़ करते थे, बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे मेजरमेंट्स के लिए। तो जब फिंगर्स को यूज़ करते थे तो उसका मेजरमेंट आता था अंगुल या फिंगर्स में।
ठीक है, तो अंगुल क्या है, एक यूनिट है। देन मुट्ठी भी एक यूनिट होती थी, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, जैसे हमें चावल बनाने हैं या दाल चढ़ानी है तो एक मुट्ठी बना लो, दो मुट्ठी बना लो, तो वो मुट्ठी भी क्या है, एक यूनिट है, मेजरमेंट का एक यूनिट है, एक मुट्ठी। अब आप देखो दो मुट्ठी, दो क्या है, एक नंबर है, और मुट्ठी क्या है, यूनिट है, राइट। फिर देखो 1790 में क्या हुआ, फ्रेंच लोगों ने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया, एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया। क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंसेस है, जब हम बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं ना तो सबका मेजरमेंट अलग अलग आता है। जैसे कि हैंड स्पैन भी एक यूनिट है, ठीक है, फिंगर के इस टिप से लेके इस टिप तक जो लेंथ मेजर होगी वो हो गई हैंड स्पैन। अब हर हर जो पर्सन है उसका जो ये डिस्टेंस है, हाथ का ये जो ब्रॉडनेस है ये अलग अलग होती है, हर किसी का हाथ सेम नहीं होता है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है। तो ये डिस्टेंस, ये जो मेजरमेंट्स हैं ये वेरी करते हैं, एक से नहीं आते हैं हर जगह। अगर मैं मेजर करूँगी तो कुछ और आएगा, आप लोग मेजर करोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। फिर देखो ये हैंड स्पैन हो गया, क्यूबिट भी होता था। क्यूबिट मतलब एल्बो से लेके फिंगर की टिप तक का जो डिस्टेंस है उसको क्यूबिट बोलते थे। तो क्यूबिट में मेजर किया जाता था, 1 क्यूबिट डिस्टेंस, 2 क्यूबिट डिस्टेंस, 3 क्यूबिट डिस्टेंस। तो क्यूबिट भी क्या है, एक यूनिट है जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। फिर फुट स्पैन भी एक यूनिट है, कितने पैर, एक पैर, दो पैर, है ना, 20 स्टेप्स, 1 स्टेप, 2 स्टेप। तो फुट स्पैन भी एक तरीके का यूनिट है जो कि एंशिएंट टाइम में यूज़ होते थे। लेकिन आज के टाइम में अब जो हम फॉलो करते हैं, तो 1960 में 12th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट, वेट एंड मेजर का एक डिपार्टमेंट होता है, जिन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम को अडॉप्ट किया। एक इंटरनेशनल सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। तो आज जो हम मेजरमेंट के लिए जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड जो है यूनिट सिस्टम है ये, ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है, तो जिसको एसआई यूनिट बोलते हैं। तो अभी जो हम फॉलो करते हैं, कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, वी आर यूजिंग एसआई यूनिट्स। और ये यूनिट्स हर जगह अर्थ के किसी भी कंट्री में जाएंगे ये यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे लेंथ की जो एसआई यूनिट है, लेंथ मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो होता है मीटर्स। मीटर्स में लेंथ को जो है मेजर किया जाता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कुछ और स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मीटर जो है वो लेंथ का एसआई यूनिट है। अभी 1 मीटर जो होता है इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो देखो मीटर भी लेंथ मेजर करने का एक यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ मेजर करने का एक यूनिट है। देन 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ओके। ये आपको लर्न होने चाहिए थोड़े कि 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। और जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, उनके लिए हम अलग यूनिट्स मेजर करते हैं। जैसे कि सपोज आपको पुणे से मुंबई का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो वी कैन नॉट मेजर इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स जो हैं बहुत ही छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। आपका जो रूलर आप यूज़ करते हो, जो स्केल आप यूज़ करते हो, उसमें सेंटीमीटर्स में एंड मिलीमीटर्स में दिया होता है, राइट। तो उससे अगर हम मेजरमेंट करेंगे पुणे से लेके मुंबई तक का, तो फिर तो हम ईयर्स तक वो मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए बड़ी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि किलोमीटर्स, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े स्टेट्स के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर्स में करते हैं। तो 1 किलोमीटर्स में 1000 मीटर्स होते हैं, ओके। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 डेकामीटर में 10 मीटर्स होते हैं। 1 हेक्टोमीटर्स में 100 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये सारे लेंथ मेजरमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, राइट। सो ये डिफरेंट आप जो है इनको लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा टेबल है, एक मीटर का टेबल है, ठीक है। किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सबसे छोटा मिलीमीटर है, उससे बड़ा सेंटीमीटर है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर उससे बड़ा हो गया मीटर, फिर उससे बड़ा किलोमीटर, फिर उससे बड़ा हेक्टोमीटर, और फिर सबसे बड़ा हो गया डेकामीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मेजरमेंट्स होते हैं, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में 1000 मीटर, मतलब किलोमीटर जो है सबसे बड़ा यूनिट है। उसके बाद में हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, डेकामीटर के बाद आएगा मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ठीक है। तो ये इनका सीक्वेंस है पूरा। तो आपको जितने लर्न कर सकते हो आप करो। एटलीस्ट 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एटलीस्ट दीज 3 यू मस्ट नो। ये तीनों आपको परफेक्टली लर्न करने हैं, फाइन। सो ये हो गया आपके स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ओके। सो वी हैव कम टू द समरी कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया। वी हैव स्टडीड अबाउट स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, देन हाउ लॉन्ग वी कैन ट्रैवल, सम ऑफ द मेजरमेंट्स वी हैव सीन विच वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स एज वेल एज नाउ अ डेज,
एंड जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, मीटर्स हो गया, सेंटीमीटर्स हो गए, किलोमीटर्स हो गए, दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, राइट? So we'll stop here in the video session. Then next topics will be covered in next video. Till then, all of you will read the lesson from your textbook and stay home, stay safe, and keep learning, all of you.